Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everybody, dear participants. It's a pleasure to welcome you all to this online webinar called Secure and Beats Forecast Driven Cybersecurity Cyber Attack Detection. That is a multivariate AI for network security. So let me tell you that today's technology is part of almost every aspect of our lives. We use smartphones, online banking, social media, cloud services, and smart devices day-to-day basis. While these technologies make life easier, they are also uh, situations in which they create new opportunities for cyber criminals. So the cyber attacks are no longer limited to a large companies or governments. Ordinary people, small businesses, school, hospitals, and every kind of organization is also affected. So तकरीबन हर चीज जो है अफेक्टेड है आजकल साइबर अटैक्स के थ्रू. सो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी में इज डिटेक्टिंग द अटैक बिफोर सीरियस डैमेज हैपन्स. तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि आपको अटैक डैमेज होने से पहले आप उसको डिटेक्ट कर लें. सो द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स often react only after an attack has been already started. So but what if computers could learn patterns, observe unusual behaviors, and, for example, warn us before a major problem occurs? This is where artificial intelligence or AI becomes very important. So इसके अंदर भी हम ये सब चीज़ें देखेंगे. So in this workshop, we will be exploring how modern AI forecasting techniques can be helpful and predict suspicious activities in computer networks. So instead of only looking for known attacks, these intelligent systems learn normal behavior, और वो learning के बाद वो identify करते हैं unusual patterns को. So these unusual patterns can eventually lead to some anomalies in the network. So these patterns need to be detected somehow. So the secure NBITS approach combines data analysis, machine learning, and cybersecurity concepts to create a smarter and more proactive defense system. So don't worry if you are not from a computer science background. This session is designed to be understandable for everyone, including students, professionals, educators, researchers, and anyone interested in learning how AI is shaping the future of the digital security. So let me introduce you to our speaker today. Our speaker is here, Mr. Mohammed Kumail, and he will be introducing himself, and also he will just start the introduction of the workshop, inshallah. So Kumail, over to you. You can start your part now. Thank you so much. Okay, so thank you so much, sir, for the kind introduction. Assalamu alaikum and good evening to everyone. So welcome to the today's workshop. So here I am. My name is Mohammed Kumail, and I am working for WPP Media as a data analytics and automation engineer. So my today's topic is based on this secure and beats forecast driven early detection of coordinate cyber attacks. So फर्स्टली अगर हम सिक्योर एंड बीट्स के पास अगर जाते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एंड बीट्स बेसिकली है क्या. ये मॉडल है या एक स्टेटमेंट है, क्या है. बेसिकली एंड बीट्स एक मॉडल है, फोरकास्टिंग मॉडल है जो कि मेटा ने डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है इन 2020. ये मॉडल बेसिकली करता ये है कि आपकी फोरकास्टिंग मॉडल्स को बेटर परफॉर्म करता है. लाइक मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे आपके LSTM मॉडल, LSTM है जो कि आपकी फोरकास्टिंग करते हैं, GRU है, सरीमा है, एंड अदर मॉडल्स भी है जो कि आपके करते हैं फोरकास्टिंग करते हैं. बट
एंड बीट्स उनसे बेटर परफॉर्म करता है, और उसे हम आगे इसमें सेशन में प्रॉपर्ली देखेंगे भी कि किस तरीके से एंड बीट्स का मॉडल परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. Yes, it is visible. ओके. सो आज के इस वर्कशॉप में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि बेसिकली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हमारी क्या है, और हमारे जो मॉडल्स अभी उसमें एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस क्या है, इसमें हमने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन किया. दैन इसके बाद इसके एक डेमो दिखाऊंगा मैं बेसिकली, जिसमें मैंने चीज़ों को दिखाया है, शो करना है क्या. सो फर्स्ट इस पे चलते हैं कि हमारे पास मॉडर्न इंटरप्राइज नेटवर्क्स जो होते हैं, जिसमें हम मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में. तो नॉर्मली हमारे 4 या 5 जो कि सिग्नल्स है, सिक्योरिटी सिग्नल्स है, वो काम कर रहे होते हैं. लाइक हमारा नेटवर्क, सीपीयू की यूटिलाइजेशन है, रैम है यानी मेमोरी यूसेज है, ऑथेंटिकेशन सब होते हैं. सो ये सारे जो मॉडल्स हैं, इन्हीं से नॉर्मली हैकर्स या जो भी साइबर अटैक्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू. लेकिन ये नॉर्मली स्लो अटैक्स होते हैं जो कि एक साथ आपको स्टार्टिंग फेज में नहीं पता चलते, लेकिन वो आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करते रहते हैं. जैसे कोई बीमारी है, स्लो पॉइजन है, स्लो बीमारी होती है ना, वो आहिस्ते आहिस्ते करके बॉडी में इन्फेक्ट करती है. इसी तरह ये भी आपके स्लो स्लो अटैक करना शुरू करते हैं. और जब आपके बिल्कुल कंप्लीट अटैक हो जाता है, तो आपका सिस्टम हैक हो चुका होता है या इन्फेक्टेड हो चुका होता है. सो हम इसमें करना ये चाह रहे हैं कि उन अटैक को फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ लिया जाए. जैसे बीमारी को कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर ही रोक दिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ती. सो बेसिकली हमारा काम इसमें यही है. तो इसके लिए मैंने एक मॉडल यूज़ किया है, एनबीट्स मॉडल. बेसिकली यूनिवेरिएट मॉडल है, यानी सिंगल वेरिएबल को देख के सिंगल प्रिडिक्शन देता है. बट हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हमारे साथ ऐसा नहीं होता. आपके मल्टीपल सिग्नल्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं. तो अब हम उसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं. तो उसके लिए इस मॉडल के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि आप इस मॉडल को एक्सपेंड कर सकते हैं, और से क्या आपका मॉडल को आप एक्सपेंड कर सकते हैं यूनिवेरिएट टू मल्टीवेरिएट. सो इसमें करंट जो मॉडल है हमारे पास यूनिवेरिएट, इसमें मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी जो कि हमारे पास आईडीज़ के अंदर के आपके इन्फेक्ट होती है. प्रॉब्लम क्रिटिकल गैस भी देखे. जैसे मैंने इसके अंदर बेसलाइन मॉडल्स की प्रेडिक्शंस की चेक किया उनको, कि हमारे पास जो कुछ पेपर्स ऐसे हैं, आई कैन शो यू दीज पेपर्स. सो ये बेसिकली हमारे पास कुछ पेपर्स है, LIETEM, हुआंग ली, चैनल एंड ओगनसिया. ये बेसिकली पेपर्स जो हैं, इन्होंने बेसलाइन मॉडल्स को लिया, CNN, LSTM, GRU एंड इवन एनबीट्स को भी लिया है. सो ये इन मॉडल्स ने करा क्या कि आपने प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन करके बताई कि भाई हम ये मॉडल बेटर है कि नहीं है. बट इन्होंने हर रिसर्चर ने अलग अलग डोमेन के ऊपर काम किया. लाइक किसी ने एग्रीकल्चर पे किया, किसी ने साइबर सिक्योरिटी पर किया, लेकिन यूनिवेरिएट पार्ट पे किया. तो वो सारी चीज़ों को मैंने इसमें कंबाइन किया है, तो कि एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है जो कि हमारा है सिक्योर एनबीट्स का. अब उनके पेपर्स के अंदर जो हमारे पास गैप्स थे, वो बेसिकली गैप्स ये थे, यानी सिग्नल आइसोलेशन. सही, सिग्नल आइसोलेशन बेसिकली क्या है कि आपके एक सिग्नल प्रोसेस हो रहा है, एक वेरिएबल के अगेंस्ट एक वेरिएबल प्रेडिक्ट हो रहा है. सही, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है. सही. इसके अलावा सेकंड गैप ये था कि रिएक्टिव डिटेक्शन थी, यानी आपका अटैक होने के बाद पता चलता है कि ये काम हुआ. सो हमें इस तरीके से रियल वर्ल्ड मिली चाहिए. इसके अलावा थर्ड पार्ट था हमारे पास ब्लैक बॉक्स मॉडल. ब्लैक बॉक्स बेसिकली आपको ये नहीं पता ब्लैक बॉक्स करता क्या है. वो ये करता है कि आपके सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ तो वो बता देगा कि अटैक हुआ, तो लेकिन ये नहीं बताएगा कि कैसे हुआ और किस सिग्नल ने ज़्यादा इफेक्ट किया जिसकी वजह से ये अटैक हुआ. सही है. इसके अलावा इसमें एक और गैप था, वो ये था कि इसके अंदर नो ड्रिफ्ट टेस्टिंग. बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट के नाम से,
कहता है कि हम एक डेटा सेट के ऊपर अगर मैंने इसको मॉडल को ट्रेन किया है, तो मैं उसे सेकंड डेटा सेट के ऊपर टेस्ट करके चेक करूँ विदाउट रीट्रेनिंग कि मेरा मॉडल जनरलाइज है कि नहीं। ये हम सब आगे फेस में देखेंगे। इसके अलावा एन बीट्स का एक और गैप, मॉडल का एक और गैप ये था कि ये सिंगल वेरिएट यूनिवेरिएट के ऊपर काम हुआ है, बट एग्रीकल्चर फेस में ये इसमें साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क में काम नहीं हुआ। सो ये सारे हमारे वो थे। और इन पेपर्स के मैंने आपको जिस वक्त बताया कि ओगेंसिया जो है इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर किया, सही एनोमली नो एनोमली डिटेक्शन, लेकिन उन्होंने डिटेक्शन एनोमली को डिटेक्ट नहीं की। इसी तरह रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया, नो फोरकास्टिंग, नो फ्यूजन लेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं। सो इसी तरह इन्होंने LSTM और CNN को यूज़ किया, सही, ब्लैक बॉक्स एंड नो अर्ली वार्निंग। सो ये सारे पेपर्स में से मेरे गैप्स को हमने फाइंड किया है और उसे अपने मॉड्यूल में कवर किया। अब इसके बाद आ गया है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि मुझे एक मॉडल क्रिएट करना है जो कि इन सारे गैप्स को कवर करें। सो फर्स्ट फेज में क्या करेंगे हम कि सिक्योर एंड बीट्स का एक मॉडल क्रिएट किया जिसमें मल्टीवेरिएट आपके सिग्नल्स होंगे, मल्टीवेरिएट वेरिएबल्स होंगे, एंड इसमें एक फ्यूजन लेयर को ऐड किया है। फ्यूजन लेयर इसके बाद आपके टेम्पोरल ब्लॉक्स है, एट्रीब्यूशन। मैं इनको सिंपल तरीके से अगर समझाऊं तो फ्यूजन लेयर बेसिकली क्या होती है, फ्यूजन लेयर ये कहती है कि मैं एक 5 मैट्रिक्स क्रिएट करूं, मेरे पास जितने वेरिएबल्स है उनका कंबाइन करके कॉम्बिनेशन करके एक मैट्रिक्स क्रिएट करूं। जैसे मेरे पास इस केस में मेरे पास 5 वेरिएबल्स है, सो मैं इन 5 वेरिएबल्स को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 v इंटू वी का कॉन्सेप्ट होता है। यानी नेटवर्क के साथ रिलेशनशिप, नेटवर्क का CPU के साथ, नेटवर्क का ऑथेंटिकेशन के साथ, इस तरीके से 515 का एक मैट्रिक्स क्रिएट किया जाए जिसमें वो पैटर्न्स को सीखे कि अगर मिसाल के तौर पे नेटवर्क बढ़ रहा है तो इससे CPU पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। सो ये आपकी अर्ली डिटेक्शन है, सही। इसके अलावा कंपैरेटिव इवैल्यूएशन के लिए, यानी बेसलाइन मॉडल्स जो पेपर्स के अंदर यूज हुए हैं, CNN, LSTM, GRU, यूनिवेरिएट, सो उन्हें इन 2 डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन एंड प्रिडिक्ट किया है, CIDS 2017 एंड UNSW NB15। ये 2 अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग डेटा सेट है। CIDS आपका कैनेडियन साइबर अटैक्स का है, साइबर डेटा का डेटा है, एंड UNSW आपका ऑस्ट्रेलिया का डेटा है। इसके अलावा थर्ड पार्ट हमारा एक नोबल पार्ट है जो कि कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट की रोबस्टनेस, यानी इसमें हम मॉडल को टेस्ट करेंगे, एक डेटा के ऊपर ट्रेन किया है मॉडल को, उसको दूसरे डेटा सेट्स के ऊपर टेस्ट करेंगे, सो चेक करने के लिए कि मॉडल हमारा कैसा काम कर रहा है। इसके बाद फोर्थ पार्ट हमारा है इंटरप्रेटेबल एट्रीब्यूशन। ये बेसिकली उस गैप को कवर कर रहा है जो कि बाकी बेसलाइन मॉडल्स नहीं कवर कर पाए। लाइक CNN आपका LSTM, CNN, GRU ये आपको बता देंगे कि आपका अटैक हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है और कौन से फीचर ने इसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया है वो चीज़ ये नहीं बता सकता। तो हमने इसमें ये चीज़ भी कवर की है, एट्रीब्यूशन का पार्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर डिटेल की तरफ जाए कि मैं मॉडल की मेथोडोलॉजी की तरफ अगर जाऊं कि मुझे मॉडल को किस तरीके से डिज़ाइन किया है, सो इसके अंदर आप ये देखें कि मॉडल जो है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है। तो सबसे पहले 4 कंपोनेंट्स के ऊपर बेस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर में बेसिकली होगा क्या कि मेरे पास 5 वेरिएबल्स है एंड 60 टाइम स्टेप्स, यानी बेसिकली पेपर्स के अंदर नॉर्मली उन्होंने 60 को का गैप कवर किया है कि 60 टाइम स्टेप्स को या ले रहे हैं, 60 इनपुट्स ले रहे हैं जो कि हम मॉडल को देंगे ट्रेनिंग के लिए, पास्ट 60 टाइम स्टेप्स, एंड उसके बाद उससे ये प्रिडिक्ट करवाएंगे कि अब नेक्स्ट टाइम 10 टाइम स्टेप्स को प्रिडिक्ट करके बताओ कि क्या उसके ऊपर क्या प्रिडिक्शन आ सकती है। सो बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इनपुट लेयर आ गए जिसमें डेटा को वो चीज़ हमने इनपुट दे दी। देन सेकंड पार्ट आ जाता है फ्यूजन लेयर। फ्यूजन लेयर जैसे मैंने भी पहले बताया कि 5v का मैट्रिक्स होता है जो कि पैटर्न्स को सीखता है, और ये रियल टाइम ऑटोमेटिकली जितने आपके वेरिएबल्स होंगे उसी तरह मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली
डिज़ाइन होगा, बनेगा और आपके मॉडल को ट्रेन होता रहेगा। इसमें कोई आपका वो हार्ड कोडेड या कोई ऐसी चीज़ नहीं, आपका सारा काम सिस्टम कर रहा है, मॉडल कर रहा है फ्यूजन लेयर के अंदर। यानी नेटवर्क के साथ कनेक्ट रिलेशनशिप, नेटवर्क का सीपीयू के साथ, नेटवर्क का मेमोरी के साथ, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन एंड इसी तरह सबके अलग हर वेरिएबल के दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन होंगे। सही। तो उससे होगा क्या, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मेरा सीपीयू, अगर मेरा नेटवर्क स्पाइक करता है, यानी अगर अचानक से इसके ऊपर अटैक हुआ, सही, या उसके ऊपर कोई एक्टिविटी एनोनिमस सस्पिशियस एक्टिविटी हुई, तो मेरा मॉडल जो है वो फ़ौरन आपको बताएगा कि अगर नेटवर्क के ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है तो मे बी सीपीयू के ऊपर भी अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने रिलेशनशिप सीखे हुए हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है टेम्पोरल ब्लॉक्स। बेसिकली एनबीट्स के जब मेटा ने मॉडल को क्रिएट किया था तो उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स वाइज आपका इसमें चीज़ें स्टैक की है। यानी इसके 3 to 5 ब्लॉक्स नॉर्मली उन्होंने कहा है कि डेटा आपका ट्रेन हो जाएगा। अब होता क्या है कि हर ब्लॉक के अंदर एक बैककास्ट एंड फॉरकास्ट के लेयर होती है, सही, जो कि हर ब्लॉक के अंदर होती है। सो अब फर्स्ट ब्लॉक के अंदर नॉर्मली वो आपके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं मॉडल, वो उसके पैटर्न्स को, मॉडल और मेजर कॉन्सेप्ट को सीखता है, कोर कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं उसको सीखता है। देन वो अगर जो नई चीज़ नहीं सीख पाता, मिसाल के तौर पे उसने अज्यूम कर लेता है कि कुछ रिलेशनशिप उसने 70-80% सीखे, कुछ 90% सीखे और कुछ इसने 20-30% सीखे। सो वो आपके सेकंड ब्लॉक को ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि अब वो सेकंड ब्लॉक में जाके वो सीखेंगे। बेसिकली इस जो ट्रांसफ़र है इसको हम रेसिडुअल्स कहते हैं, यानी इसके जो पैटर्न्स को नहीं सीख सका वो सेकंड ब्लॉक में जाके सीखेगा, देन सेकंड से थर्ड ब्लॉक में। एंड नॉर्मली 3 ब्लॉक्स के अंदर आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है, अच्छे तरीके से पैटर्न्स को सीख जाते हैं। या अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है तो आप 5 ब्लॉक्स तक मैक्सिमम जा सकते हो। और उन्होंने ये चीज़ कमिट की है कि 3 to 5 ब्लॉक्स के अंदर आपका काम हो जाएगा। देन इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट आ जाता है जो कि एनोमली डिटेक्ट कर रहा है। अब एनोमली डिटेक्ट करने का मतलब है कि मुझे ये बताएगा कि नेटवर्क पे अटैक हुआ या नहीं हुआ। भाई फोरकास्टिंग टाइम स्टेप्स के थ्रू ये पता चल रहा होगा। ये जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और इसमें आपके बेसिकली इसमें काम किस तरीके से हो रहा होता है, काम इस तरीके से होता है कि आपके हर वेरिएबल की एरर कैलकुलेट होता है। यानी एरर का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। एक एक्चुअल वैल्यू जो कि मेरे पास डेटा में थी और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट की प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये दोनों आपस में माइनस होकर एक एरर जनरेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ये होता है कि आप जेड स्कोर कैलकुलेट करते हो। अब जेड स्कोर क्या है कि ये चेक करता है कि आपके एरर कितना उससे करीब है आपके डिटेक्शन, आपके एक्चुअल डेटा से। सो इसका फॉर्मूला नॉर्मली ये होता है कि आपका जो करंट एरर है उसमें से माइनस करें मीन को और डिवाइड करें स्टैंडर्ड डेविएशन को। सो ये बेसिकली आपका एक जेड स्कोर इससे कैलकुलेट होता है हर वेरिएबल के ऊपर। देन इसके बाद आपके कुछ रिसर्च पेपर्स के अंदर उन्होंने ये बताया है कि आपका एक जेड स्कोर का एक थ्रेशोल्ड है, मल्टीपल थ्रेशोल्ड है जिसके अगेंस्ट मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि ये अटैक है कि नहीं है। सो जेड स्कोर्स के मल्टीपल फेसेस है, जैसे जेड स्कोर का अगर 0 है तो वो नॉर्मल है, इतना कोई अटैक नहीं हुआ, 0 के करीब है। अगर 1 है तो यानी आप 20-30% कह सकते हैं कि ये अटैक हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जेड स्कोर अगर 2 या 2 से अबव है तो वो डेफिनेटली आपका अटैक की तरफ उसको बताता है कि अटैक हुआ, क्योंकि इसके ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाती है। आपके नेटवर्क या सीपीयू या ऑथेंटिकेशन मेमोरी जो भी आपके वेरिएबल्स है वो ज़्यादा स्पाइक कर जाते हैं नॉर्मल डेटा से, तो वो अटैक में कंट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसके बाद इसका एक और डी पार्ट आ जाता है जो कि नोवल पार्ट भी है मेरा, वो ये है कि एट्रीब्यूशन। अभी तक किसी भी पेपर के अंदर, जो कि मेरे पेपर्स की रिसर्च है, उन पेपर्स के अंदर कहीं पर भी ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई है उन्होंने कि मॉडल ये बताया कि कौन से वेरिएबल ने या कौन से सिग्नल ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया अटैक के अंदर। यानी अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी इन्वायरमेंट कंपनी में हूँ और मैं वहाँ पे सिक्योरिटी इस सिस्टम को डिप्लॉय करता हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी टीम मुझसे ये सवाल करेगी कि भाई अगर आप बता रहे हो कि अटैक हुआ है,
ठीक है, आपने बता दिया अटैक हुआ है, लेकिन अटैक कैसे हुआ, कौन से सिस्टम चीज के ऊपर अटैक हुआ है? हमारे नेटवर्क पे हुआ है, हमारे सीपीयू पे हुआ है, हमारे ऑथेंटिकेशन पे हुआ है, किस चीज के ऊपर हुआ? सो ये एक गैप था जो कि बाकी पेपर्स में नहीं डिफाइन किया गया, उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन हमने इसके ऊपर काम किया है। सो इस तरीके से होगा। अब मैं इसका एक आपको सिंपल जो मैंने अभी तक आपकी बात की, इसका एक फ्लो दिखाता हूँ। ये बेसिकली मेरा एंड टू एंड फ्लो है। इज इट विजिबल टू एनीवन, एवरीवन? सो ये बेसिकली मेरा एंड टू एंड फ्लो है, जिसमें मेरा इनपुट है जिस तरह 60 टाइम स्टेप पास्ट के एंड 5 मेरे वेरिएबल्स। देन इसके बाद फ्यूजन लेयर आई जो कि उसामा यार एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी जी पूछे। ये इनपुट आप डेटा सेट का इनपुट दे रहे हैं? जी बिल्कुल। ये डेटा सेट किस फॉर्म में? डेटा सेट हमारा रॉ फॉर्म में है, रॉ डेटा है बेसिकली। मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा सेट इट इज? मतलब लॉग्स का डेटा सेट है, क्या है? सिक्योरिटी सिग्नल्स का डेटा सेट है बेसिकली। सिक्योरिटी सिग्नल्स, नेटवर्क डिवाइसेस की बात कर रहे हैं आप? यस, नेटवर्क जैसे आपका फ्लो ड्यूरेशन हो गया, सोर्स टू फ्लोज की बात कर रहे हैं बेसिकली? सॉरी, नेटवर्क फ्लोज की बात कर रहे हैं जो राउटर और स्विचेस से आते हैं? बिल्कुल इस तरह का डेटा। अच्छा अच्छा, और एक किस तरह के फ्लोज हैं? क्यू फ्लोज है, जे फ्लो है, एस फ्लो? क्यू फ्लोज, जे फ्लोज, बेसिकली आप किस क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब ये नेटवर्क की जो लेयर्स होती है ना, तो उसके लेवल के फ्लोज होते हैं। हर फ्लो जो है ना वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिप्रेजेंट करता है, मतलब नेटवर्क के सिग्नल्स कह रहे हैं, ट्रैफिक कह रहे हैं आप। ओके, सो जैसे क्यू फ्लो है ना, तो वो लेयर 3 तक की जो है ना आपको वो देता है, विजिबिलिटी देता है। सॉरी बट मैंने इसको इतना डीपली इसमें एनालाइज नहीं किया, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी मेरा बेसिकली डोमेन नहीं है इतना। सो इतना मुझे नेटवर्क और सिक्योरिटी की इतनी नॉलेज नहीं कि किस तरीके से किस तरह के टाइप के डेटा सेट्स होते हैं हमारे पास। हाँ, ये कह सकता हूँ मैं कि ये बेस लाइन डेटा सेट्स जो कि आपके बेंचमार्क डेटा सेट्स जो बेसिकली कहलाते हैं, जो कि हमने पेपर्स में भी यूज़ हुए हैं, CICIDS वाला और UNSW वाला। सो इन डेटा सेट्स को लिया है। सही सही, ठीक है, थैंक यू। सो कंटिन्यू करते हैं उस पार्ट से आगे। देन फ्यूजन लेयर थी, देन इसके बाद नेट एंड बीट्स के ब्लॉक्स हैं, देन फोरकास्टिंग से, फिर कंपेयर करा है उसको एक्चुअल से, जैसे अभी एरर बताया। देन जेड स्कोर का डिटेक्शन की, अगर जेड स्कोर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देगा। और एट्रीब्यूशन जो कि बताएगा कि कौन से वेरिएबल ज़्यादा कर रहा है इसके ऊपर इफेक्ट। सो देन इसके बाद हमारे पास इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी चीज़ की बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की है। सो पाइथन है, मशीन लर्निंग के साइकिट लर्न है, प्लॉटिंग्स के वगैरह है, और ये डेटा सेट्स जो कि मैंने आपको बताया भी कि कौन कौन से डेटा सेट्स हैं, CICIDS एंड UNSW। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था जब हमारे डिटेक्शन हो गए, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, बेंचमार्क अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस लाइन। तो इसमें हो क्या रहा है कि पहले बेंचमार्क्स के डेटा सेट्स के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया और इनके एरर को कैलकुलेट किया कि भाई कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो बेसिकली जो हमारे बेस लाइन मॉडल्स है वो सारे आपके ज़्यादातर क्लासिफिकेशन बेस्ड है। सही, आपके कुछ मॉडल आपके फोरकास्टिंग भी कर रहे हैं और वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड भी, लेकिन इनके अंदर जो सबसे बड़ा एक गैप था या इशू था वो यही था कि एक वेरिएबल कि हर मॉडल एक वेरिएबल के अगेंस्ट एक वेरिएबल को आउटपुट देता था। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे दूं, CNN अगर मॉडल को डिटेक्ट कर रहा है, आउटपुट को डिटेक्ट कर रहा है एरर को, तो वो पहले ये चेक करेगा कि नेटवर्क को चेक कर रहा है कि भाई हाई हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो नेटवर्क हाई हो रहा है तो वो सेकंड उसके ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि अब अगर नेटवर्क हाई हो रहा है थोड़ा बहुत, सो मेरा मेमोरी हाई हो रही है कि नहीं हो रही, देन ऑथेंटिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। ये सब चीज़ें जब वो अलग अलग लॉग्स को, अलग अलग वेरिएबल्स को चेक करेगा, इतने में आपका अटैक फ्लो सिस्टम के ऊपर हो चुका होता है। ये आपका रिएक्टिव अप्रोच है। देन उसके बाद बताएगा कि हाँ भाई आपका अटैक हो चुका। लेकिन हमारे केस में हमने इसको एक वी इंटू वी मैट्रिक्स के थ्रू जब काम किया हमने,
तो इसमें हमने उसी चीज़ को डिफाइन कर दिया कि भाई अगर पैटर्न्स को सीखे कि अगर वो पहले ही नेटवर्क स्पाइक कर रहा है तो वो उसको अलर्ट दे दे कि हाँ भाई नेटवर्क ने स्पाइक किया है, सो आपके सीपीयू के ऊपर भी या किसी और सिग्नल के ऊपर भी अटैक हो सकता है। सो उसकी कुछ मॉडल्स की एक्यूरेसीज हमारे पास थी और एनबीट्स के मॉडल की भी एक्यूरेसी हमारे पास है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में कंपैरिजन किया। इसके बाद जो हमारा एक और पार्ट आ गया वो हमारा आया है कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। अब ये एक नोवल पार्ट है बेसिकली। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि अगर मैं एक डेटा सेट ले रहा हूँ और उसको मैंने ट्रेन करा, उसके ऊपर डेटा सेट के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया और उसी से मैंने उसके ऊपर प्रेडिक्शन करवा दी, तो मेरे पास रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे, एक्यूरेट आ रहे होंगे जैसे नॉर्मल होता है। लेकिन अगर मैं उसी मॉडल को किसी और अनसीन डेटा सेट के ऊपर टेस्ट करता हूँ तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा मॉडल ने पैटर्न्स को सीखा है या नहीं सीखा है। बेसिकली जो सिक्योर एंडबीट्स का मॉडल है वो वेरिएबल्स के ऊपर नहीं, वो पैटर्न्स के ऊपर काम कर रहा होता है। सो ये कुछ क्रॉस वेरिएशन डेटा सेट्स के ऊपर काम किया। अब इसमें दो डेटा सेट्स हमारे पास CI/CD एंड UNSW। सो हमने फर्स्ट में CI/CD को CI/DS के अगेंस्ट टेस्ट का प्रेडिक्ट करा, सही। देन इसके मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा। देन CI/CD को के मॉडल को लिया और UNSW के डेटा सेट के ऊपर टेस्ट करा विदाउट रिट्रेनिंग, कोई मॉडल की ट्रेनिंग नहीं की है। देन UNSW का मॉडल हमने लिया और UNSW के डेटा सेट के ऊपर टेस्ट किया। देन लास्ट UNSW के मॉडल को CI/CD के डेटा के सेट के ऊपर टेस्ट किया, यानी क्रॉस डेटा सेट वैलिडेशन की और एक्यूरेसीज को चेक किया कि हमारे पास कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे मॉडल ने जनरलाइजेशन की है कि नहीं की है। सो ये एक पार्ट इसके अंदर चीज़ आई है। अगर मैं इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इस तरीके से आप ले सकते हैं कि ये मॉडल्स हम अगर कहीं डिप्लॉय करने जाएं, लाइक हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं या बैंक्स में कर रहे हैं, तो उनका डेटा सेट अपना होगा, हमारा डेटा सेट जिस पर हमने किया ये अलग है। सो मुझे सिर्फ अपने मॉडल को उनके डेटा सेट्स के ऊपर टेस्ट करना है कि मॉडल जनरलाइजेबल है कि नहीं है रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर। देन इसके बाद एक और चीज़ के ऊपर मैंने काम किया था जो कि है बेसिकली सिंथेटिक अटैक्स, यानी इसके ऊपर हमने एक रैंडम अटैक्स को डेटा सेट के ऊपर रैंडम अटैक्स को टेस्ट किया। बेसिकली किया उसके अंदर किया ये है कि मैंने रैंडम अटैक्स कुछ जनरेट किए, रैंडम नंबर जनरेट किए और उसे हमारे डेटा सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया और चेक करने के लिए कि वो उन डेटा सेट्स को के ऊपर टेस्ट करने के बाद कि वो पता कर सके, चेक कर सके मॉडल सही प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सो ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि इसके ऊपर बेसिकली नोवल पार्ट से जो कि काम किया है ताकि मॉडल की जनरलाइजेशन को चेक किया जा सके, सही है कि मॉडल कितना परफेक्ट है और बेसलाइंस के अगेंस्ट मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड इसके अलावा एक चीज़ मुझे इसके ऊपर और करनी है जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर भी रहा हूँ, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, वो है बेसिकली LSTM के मॉडल। अब ये मॉडल जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये मॉडल की ट्रेनिंग अभी चल रही है। सो LSTM भी आपका फोरकास्टिंग करता है, GRU भी आपकी फोरकास्टिंग करता है। सो अब मैं LSTM वाले मॉडल की फोरकास्टिंग को मैं चेक करना है मुझे कि ये मॉडल LSTM का मॉडल जो है वो पहले अटैक को डिटेक्ट कर लेता है या हमारा सिक्योर एंडबीट्स का जो मॉडल है वो पहले डिटेक्ट करता है। सो ये एक क्रॉस वैलिडेशन भी इसके ऊपर काम करनी है। तो ये नेक्स्ट पार्ट होगा मेरा उसके ऊपर काम करने का कि इसको इसके थ्रू प्रूफ करें या चेक करें कि किस तरीके से काम कर रहा है। सो अब मैं अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको डेमो की तरफ दिखाऊं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम फुरकान अहमद खान। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सिक्योर एनबीट साइबर अटैक को होने से पहले प्रोटेक्ट कैसे करता है और ये ट्रेडिशनल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से किस तरह से डिफरेंट है? हाँ, वो इस तरीके से पहले डिटेक्ट इस तरीके से करता है कि हमने इसके अंदर एक फ्यूजन लेयर को ऐड किया है। फ्यूजन लेयर जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, फ्यूजन लेयर बेसिकली आपके पैटर्न्स को सीखता है। वेरिएबल के V/V मैट्रिक्स होता है बेसिकली आपका, हर वेरिएबल के अगेंस्ट हर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के साथ पैटर्न्स को सीखता है। सो वो पैटर्न्स जैसे ही एक वेरिएबल अगर स्पाइक कर रहा है तो वो उसको फौरन अलर्ट शो करेगा।
कि भाई मॉडल ने नेटवर्क ने मिसाल के तौर पे स्पाइक किया या सीपीयू ने स्पाइक किया, सो अब वो उसके अगेंस्ट वो प्रिडिक्शन दे रहा होगा। सो इस तरीके से ये आपका काम कर रहा होता है। ये मैं आपको इसमें दिखाता भी हूँ, क्रॉस वैलिडेशंस के अंदर भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी। सो उसामा हेरियर, मैं फुरकान के क्वेश्चन को कैरी ऑन करके एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आईडीएस आ रहे हैं, आईडीएस आईपीएस हो गए, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ गई, इसके अंदर यूजर एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स के नाम से एक मॉडल आता है, जो कि वही मशीन लर्निंग की बेसिस पे काम कर रहा होता है और पैटर्न्स को जो है ना वो रन टाइम के ऊपर लर्न कर रहा होता है। तो उसमें और आपने जो एक फ्यूजन लेयर अपने मॉडल में ऐड करी, क्या डिफरेंस है? फ्यूजन मॉडल्स जो आप कह रहे हैं वो रियल टाइम डेटा के ऊपर काम कर रहा है, और हमारा जो मॉडल है हमने ये स्टैटिक डेटा के ऊपर क्रिएट किया हुआ है। सो हम उसको ये काम ये कर सकते हैं कि उसको क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं, यानी उसको टेस्ट कर सकते हैं हमारे मॉडल को उन मॉडल के अगेंस्ट, कि हमारा मॉडल किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा रियल टाइम डेटा के ऊपर, क्योंकि हमने इसके ऊपर रियल टाइम एनोमली या रियल टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं इसमें फीड की है कि मैं रियल टाइम डेटा के ऊपर उसको फ़ौरन प्रिडिक्ट करके बता सकूं कि ये चीज़ बेटर है, इनका मॉडल बेटर है या हमारा मॉडल बेटर है। हमने इसे जो स्टैटिक डेटा है वो इसे फीड किया है और उसके आउटपुट निकाला है। लेकिन अगर रियल टाइम की बात कर रहे हैं तो रियल टाइम डेटा के साथ इसको मॉडल को चेक कर सकते हैं हम कि ये बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, या इसमें क्या इशू आ सकता है। जो फ्यूजन लेयर जहाँ तक की बात है, वो फ्यूजन लेयर आपके पैटर्न्स को सीख रहा है। सो इसमें आपके सारा वर्क डायनेमिक हो रहा है। अगर वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा होगी तो मैट्रिक्स भी उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सो वो उतने तरीके से उतने ही पैटर्न्स को सीखता रहेगा। सो मे भी शायद हमारा मॉडल उस पैटर्न्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा बिहेव कर सके, या स्लो भी हो सकता है हमारा मॉडल, क्योंकि अगर पैरामीटर ज़्यादा बढ़ गए या मॉडल की कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ज़्यादा बढ़ गए तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ सकती है मॉडल की। सो ये एक हम इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं या उसके एक नए फेज में उसको एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एक अच्छा आइडिया आपने दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस, कि हम इसको उसके रियल टाइम डेटा के ऊपर भी ट्रैक करके चेक करके देखें कि मॉडल कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। हेलो, स्लो आ रही है आवाज़, कोई कौन कह रहे हैं? सॉरी सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। हेलो कुमेल, मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जब नेटवर्क बिहेवियर टाइम के साथ चेंज होता है तो मॉडल कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट को कैसे हैंडल करता है? कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम चेक ये कर रहे हैं कि मॉडल हमारा दूसरे डेटा सेट के ऊपर कितना आउटपुट प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि हमारे मॉडल ने कॉन्सेप्ट को सीखा है कि नहीं सीखा, पैटर्न्स को सीखा है कि नहीं सीखा। तो ये कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट जो है ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है अगेंस्ट क्रॉस डेटा सेट्स। और इसी के साथ कोई एक क्वेश्चन है कि ये क्या ये फ्रेमवर्क जीरो डे अटैक या नो अटैक पैटर्न को डिटेक्ट कर सकता है? लाइक किस तरीके से जीरो डे, थोड़ा सा डिफाइन करें। जीरो डे मतलब जैसे न्यू अटैक है और जो अननोन मतलब उसका अटैक पैटर्न ही नहीं है, मतलब बहुत ही न्यू अटैक है, यूनिक अटैक है समझें। तो यूनिक अटैक है, उसका कोई पैटर्न कभी आया ही नहीं है, तो ये इसको डिटेक्ट करेगा या उसको जहाँ आपके पास या किस तरह से हैंडल करेगा? या तो अफेक्ट होने देगा या उसको सिर्फ नॉर्मल से ब्लॉक कर देगा या किस तरह से ये सरपास कर जाएगा? ये नहीं, हाँ होगा ये कि इस तरीके से एक वर्क कर रहा होगा कि ये बेसिकली आपके स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की बेस पे काम हो रहा है सारा। जैसे मैंने अभी इसमें बीच में बताया था कि ये जेड स्क्वायर की कैलकुलेशन के थ्रू काम हो रहा होता है। कि हमने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया हुआ है कि अगर 2% से ऊपर के अगर मॉडल जा रहा है, कोई भी इम्पैक्ट कर रहा है इसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर या किसी भी वेरिएबल सिग्नल के ऊपर, सो वो जेड स्क्योर की एनोमली से चेक हो जाएगा कि मेरे पास सबसे पहले प्रिडिक्शन हो रही है कि अगर मेरा एक नेटवर्क या सीपीयू एक आइडियल वे में चल रहे हैं
सही है, उतना 0.3, 0.5, 0.6 इस तरह के आ रहे हैं। अब अगर कोई अचानक से अनयूजुअल पैटर्न आ रहा है या अनयूजुअल कोई एक्टिविटी हो रही है, तो ये फॉरन कैलकुलेशन होगी जेड इज एक्चुअल प्रेडिक्टेड, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड की, और उससे एरर जनरेट होगा। वो एरर आपके जेड स्कोर से अगर इंक्रीज कर रहा है, थ्रेशोल्ड से इंक्रीज कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगा। फिर इसके बाद वो चेक बताएगा कि कौन सा आपका एट्रीब्यूशन है, कौन सा आपका जो वेरिएबल है, सिग्नल है, वो इस पे इम्पैक्ट करा है। सो ये चीज़ इस तरीके से वर्क कर रहा हूँ। सर की चीज़ है वी नीड टू सामा हियर यार, एक क्वेश्चन है। एक पूछे। अगर आईएसपी लेवल के ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सही है, वहाँ पे तो थ्रेशोल्ड नेटवर्क के जो ट्रैफिक आ रहा होता है वो बहुत हाई होता है, तो वहाँ पे ये फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा मार्क नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। या जब आप उस वक्त फिर आप जिस तरह का नेटवर्क होगा, आप उस हिसाब से स्कोर को रख रहे होंगे। नॉर्मली अगर आप इसको जो स्कोर की जो कैलकुलेशन है, आपको एक बात पता है कि ये जो मेरा अगर ज़्यादा आ भी रहा है तो वो नॉर्मल है वहाँ के उन डेटा सेट के हिसाब से या उस कंपनी के हिसाब से, वो नेटवर्क का फ्लो उधर के हिसाब से नॉर्मल है। लेकिन अगर जो नॉर्मल लाइफ में जिस तरह आप लोग हम घर में वाईफाई यूज़ करते हैं या उसमें घरों में मोबाइल्स में यूज़ हो रहा है, तो उस पर नेटवर्क का फ्लो डिफरेंट है और वहाँ पे नेटवर्क का फ्लो डिफरेंट होगा, तो उस हिसाब से थ्रेशोल्ड डिफाइन होगा कि अगर वहाँ पर ज़्यादा फ्लो आ रहा है, स्पीड में आ रहा है, जैसे कंपनीज के अंदर होता है, तो आप वहाँ पे थ्रेशोल्ड उस हिसाब से डिफाइन करोगे कि हाँ भाई ये चीज़ नॉर्मल है यहाँ पे। इसके ऊपर अगर कोई जा रही है तो फिर आप उसको एनोमली डिटेक्ट करो। तो हर जगह के हिसाब से आपका थ्रेशोल्ड डिफरेंट हो रहा होगा, हर नेटवर्क के हिसाब से। और कस्टम डिटेक्शन की क्या कैपेबिलिटी होगी इसके अंदर? कस्टम डिटेक्शन लाइक फॉर किस तरीके से जी, कस्टम डिटेक्शन का मतलब ये कि जैसे आप तो स्पेसिफिक डेटा सेट्स के ऊपर इसको ट्रेन करवा रहे हैं ना, ठीक है। अब मुझे कंप्लायंस बेस्ड भी जो है ना कुछ डिटेक्शंस करवानी है एम्प्लॉयज़ अंडर द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एम्प्लॉयज़ है, मैं चाहता हूँ कि वो जो है पी कैप ना चलाएं, सही है, इस डिपार्टमेंट वाले जो है पी कैप चलाएं तो मेरे पास जो है वो अलर्ट आ जाए या डिटेक्ट हो के मेरे पास ऑफेंस जनरेट हो जाए। तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखें, एक तो आपकी साइबर अटैक्स बेस्ड जो है ना वो डिटेक्शंस होती हैं, सही। दूसरा होती है गवर्नेंस या रिस्क बेस्ड डिटेक्शंस होती हैं, उसके हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया, सो उसे देखना पड़ेगा कि उसका वर्क फ्लो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम इसके अंदर। कि गवर्नेंस के और साइबर अटैक्स में दोनों में डिफरेंशिएट है, जैसे अभी आपने खुद भी कहा, तो मुझे उसके हिसाब से चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा, मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा या उसको बताना पड़ेगा कि ये गवर्नेंस लेवल की चीज़ें हैं, तो उसे इस तरीके से हैंडल करना है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो डिफरेंट तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। वी नीड टू इनकॉर्पोरेट रियल टाइम डिटेक्शन इन आवर थीसिस एप्सिस द बेसिक। या श्योर सर, इंशाल्लाह इसको करेंगे, इस पर वर्क, रियल टाइम डिटेक्शन, रियल टाइम डेटा को इसको इनकॉर्पोरेट करके मॉडल को टेक्स्ट करेंगे। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट मैंने रखा हुआ है, करूँगा। मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको? जी अब आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने बी बाई बी का जो मैट्रिक्स बनाया है, तो उसके अंदर एक तो कंपोनेंट आपका नेटवर्क आ गया, एक सीपीयू आ गया, तो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो ज़रा एक्सप्लेन कर दो। इसमें 5 वेरिएबल्स जो हमने यूज़ किए हैं वो आपका नेटवर्क, सीपीयू, मेमोरी, ऑथेंटिकेशन एंड आईडीएस, ये 4-5 वेरिएबल्स है। यानी आपके इसके वेरिएबल्स में आपके फ्लो ड्यूरेशन है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, एस बाइट्स है, बी बाइट्स, ये जो वेरिएबल्स के नाम है, जो जिनका असल मकसद ये है कि ये नेटवर्क, सीपीयू, ऑथेंटिकेशन, लॉग्स, ये सारे हैं। अच्छा, इसका मैट्रिक्स आपने किसी डेटा स्ट्रक्चर में बनाया है, वो दिखा सकते हैं? सॉरी सर, वो प्रिंट नहीं करवाया है वो चीज़, वी इंटू वी का मैट्रिक्स। नहीं, कहीं टेक्स्ट फाइल में या किसी जेसन की फाइल में कहीं आपने डेटा स्ट्रक्चर तो बनाई होगी ना? नहीं सर, उसको कहीं स्टोर नहीं किया वी इंटू वी मैट्रिक्स को। तो वो फिर डिज़ाइन कैसे किया है आपने? यानी आपने इस तरीके से होता है कि आपका एक कैलकुलेशन फार्मूला है फ्यूजन लेयर के पर, कि आप उसमें वी इंटू वी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरिएबल जो मेरे पास एक्चुअल वेरिएबल्स है उनको अपने ही वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पैरामीटर्स डिफाइन हो जाएंगे। अच्छा, जो 5 इसमें आपने वेरिएबल्स बताए, उसके अंदर मेमोरी हो गया और सीपीयू, नेटवर्क और एक आईडीएस भी बताया आपने। जी। तो
ITS itself वो एक वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है। जी, वेरिएबल के थ्रू बेसिकली इनके जो नाम्स हैं ना वो अलग-अलग तरीके से हैं। जैसे किसी के अंदर फ्लो ड्यूरेशन लिखा हुआ है, कहीं पर फ्लो पैकेट्स लिखा है, कहीं के अंदर फ्लो डेस्टिनेशन लिखा है। सो ये इस तरीके से वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, वो डेटा सेट की बात कर रहे हैं आप? जी, 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 जी। हाँ, तो वो डेटा सेट दिखा दें आप, ताकि वो क्लियरिटी हो जाए उसकी। थैंक यू। इस तरीके का डेटा सेट है मतलब। ये वेरिएबल्स आ रहे हैं एस बाइट, डी बाइट्स, एस स्टिल, डी स्टिल एंड इस तरीके से वेरिएबल्स के आपके नाम आ रहे हैं। अब इसमें से हमने सारे वेरिएबल्स को नहीं लिया क्योंकि मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, ट्रेनिंग में भी बहुत टाइम लगता, सो इस तरीके से। हाँ, तो तो ये इस इसमें स्ट्रीमलाइन कहाँ हो सकता है? ये सिलेबस क्या आप डिजाइन करेंगे? जी वो दिखा दीजिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लें। जी जी हाँ, ओके, दैट्स फाइन। ज़्यादा देखना जी। ये वी इंटू वी का मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपकी फ्यूजन लेयर्स मल्टीप्लाई हो रही। ये ओके, और नंबर ये ऑफ वेरिएबल्स इंटू आपके दूसरे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही। अच्छा, ये तो ये 5 आप कहते 5 इसके वेरिएबल 5 लिए मैंने। वो कौन-कौन से हैं? ये रहे एस बाइट्स, डी बाइट्स, मैं आपको वेरिएबल्स भी दिखा देता हूँ। 5 वेरिएबल से है, एस बाइट, डी बाइट्स, एस स्टिल, डी स्टिल एंड आपका सीरियस। ये रहे वेट। रेट है? ये आपका यूएनएसडब्ल्यू वाले डेटा सेट के अंदर कॉलम्स के नेम है और सीआईसीआईडीएस के अंदर भी है अलग। अच्छा, ये वी बाय वी मैट्रिक्स बन रहा है, तो इससे क्या बिल्कुल। मतलब है? जैसे ये STL1, ETL1। ये सोर्स टू डेस्टिनेशन का डेटा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर पैकेट्स का, ये डेस्टिनेशन टू सोर्स के ऊपर पैकेट जो आए उसका है। ये आपका फ्लो रेट है, कितना फ्लो से आपका डेटा गया और ये भी आपके बाइट्स है, ये बाइट्स में है वेरिएबल आपके पैकेट्स। तो इस तरीके से आपका ये हर दोनों डेटा सेट्स के अंदर आपके फ्यूजन मैट्रिक्स बन रहा है जिसके थ्रू आपको ये डिटेक्शन होगी। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, वो ये कि एनबीट को तो जब हम यूज करें तो फिर हम कौन से सॉरी आपकी आवाज़ सर थोड़ी सी वो बीच में चली गई थी। जी, मैं कह रहा हूँ कि एनबीट के थ्रू कौन-कौन से हमने इसमें सर अभी जो है वो 3 उसको रखे हुए हैं मैंने आपके। एक रखा है ब्रूट फोर्स का, एक रखा है डीडॉस का और आपका एक क्रिप्टो माइनिंग मैंने ऐड किया सीरियस। सो ये मैंने अटैक पैटर्न्स इसको कुछ डिफाइन किए हैं कि भाई ये आपके हो रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई और अटैक ऐड करते हैं तो वो भी इसमें पिक करेगा। ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए हमने कुछ अटैक पैटर्न डाले गए। और अगर आप उसका अनयूजुअल, जिस तरह भी सवाल आया था फुरकान का कि अनयूजुअल पैटर्न अगर आ रहा है तो वो उसे भी डिटेक्ट करेगा स्कोरिंग के बेस के ऊपर, जिस तरह मैंने भी बताया कि एरर माइनस एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड और उसके थ्रू ये सारी बातें। सो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो मैंने अभी चीज़ आपको बताई, ये पूरी वर्किंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट इसको प्रिडिक्ट करके दिखाया। प्रेडिक्ट सॉरी कह रहा हूँ, मैंने इसके प्रिंट्स निकाले हैं, आउटपुट में इसको टेबल फॉर्म में इसको प्रिंट करा है। जैसे मैंने इसके ऊपर डेटा सेट जो था वो मैंने अपना CICIDS वाला डेटा सेट यूज़ किया जिसमें रैंडम 60 आपकी पास रॉज आ रही है और 10 प्रिडिक्शन आ रहे हैं, यानी 10 स्टेम्स आ रहे हैं T0 से T9 तक।
अब ये आपका यहाँ पर जो कैलकुलेशंस मैं आपको बताया था वो यहाँ पर आ रही। एक्चुअल वैल्यू मेरे पास हर वेरिएबल की आ रही थी और उसकी एक प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी पहले प्रिडिक्टेड वैल्यू थी और उसके बाद एक्चुअल वैल्यू के अगेंस्ट एरर कैलकुलेट हुआ, सही। देन उन एरर्स का आपका सम होगा जो कि एवरेज आपका बन जाएगा एरर। देन इसके बाद आपका जेड स्कोर, अभी जेड स्कोर में आपके आ जाते हैं एरर, करंट एरर और माइनस मीन डिवाइड बाय प्रिडिक्शन, स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने पहले ही निकाल लिया था कॉलम का पूरे। सो उस वो कैलकुलेट हो रहा है कि ये आपका नंबर बना जेड स्कोर बेसिकली। और अगर जेड स्कोर आपका थ्रेशोल्ड से अबव है तो वो आपका एरर प्रिडिक्ट करेगा, नहीं तो फिर आपका ये नॉर्मल डिफाइन करेगा। सो ये सारी नॉर्मल की क्यूरीज आ रही है और मैं आपको इसके टाइम नेक्स्ट टाइम स्टेप के ऊपर दिखाता हूँ जहाँ पर इसने अटैक को डिटेक्ट किया। जहाँ पर ये अटैक डिटेक्ट करेगा वहीं पर आपके फौरन वो ट्रिगर करेगा कि आपका अटैक आया है। सी दिस, ये वाला। जैसे इस टाइम स्टैम्प के ऊपर इसने इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया कि भाई एक्चुअल वैल्यू ये थी मेरी और प्रेडिक्टेड वैल्यू मेरी ये थी, सही। देन इसके बेस के ऊपर जो आपका कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड होकर मेरा ये एरर जेड स्कोर बन गया जो कि 2 से अबव है। तो ये फौरन इसने अटैक को बता दिया कि ये अटैक होगा। अब इसके बेस के ऊपर मैं अटैक को मैं कहीं पर अलर्ट के शो तौर पे मैं शो करवा दूँ, कोई ईमेल ट्रिगर करवा दूँ, कोई मैं पॉपअप शो करवा दूँ, ये चीज़ मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। इसने पहले ही शुरू के टाइम स्टेप पर ही एरर पकड़ लिया, जबकि LSTM और बाकी मॉडल्स आपके मे भी शायद किसी और टाइम स्टेप के ऊपर जाके उसको डिटेक्ट करे। क्योंकि इसको मैंने अभी डेटा सेट को फॉरकास्ट LSTM के थ्रू मैंने अभी इसको चेक नहीं किया है। LSTM के थ्रू मैं अभी इसको चेक करूंगा कि हमारा मॉडल ज़्यादा बेटर प्रिडिक्ट कर पकड़ रहा है जल्दी या फिर LSTM जल्दी पकड़ रहा है, GRU पहले पकड़ रहा है। देन इसके बाद ये जो हमारा एट्रीब्यूशन का टैग था वो भी इसने बता दिया कि कौन से एट्रीब्यूशन ने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस अटैक के अंदर। सो इस तरीके से हमारा ये काम चल रहा है। देन इसके बाद और इसके अलावा ये हमारे पास अटैक्स की वर्किंग थी। इसके अलावा ये आपकी कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट की वर्किंग है जिसमें आप मल्टीपल मॉडल्स को अगेंस्ट मल्टीपल मॉडल्स टेस्ट कर रहे होंगे, जो यहाँ पर मैंने डिफाइन भी किया हुआ है सीरीज। यानी मैंने सेम आपके 4 सिनेरियोज थे, उन सिनेरियोज को चलाया, बट फ़र्क सिर्फ इतना था कि हर जगह पे डेटा सेट और मॉडल चेंज हुआ। CI का मॉडल CI के डेटा पे, CI का मॉडल UNSW के डेटा पे, देन ये वाला मॉडल इस डेटा पे, ये मॉडल इस डेटा पे। सो इस तरीके से हमारे कंपैरिजन्स हो रहे हैं। सो ये यहाँ तक अभी वर्किंग हुई है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो LSTM और GRU की फॉरकास्टिंग को NBITS के थ्रू वेरीफाई करवाना या चेक करवाना कि कितना मॉडल हमारा बेटर है कि नहीं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। एक मेरा सवाल था। जी मेरा एक सवाल था, मेरा ही सवाल था कि आपने 3 अटैक, जी सॉरी, वो जो 3 अटैक थे जो आप जी वायलेंस उनको क्यों आपने सॉरी सर, आवाज़ आपकी बिल्कुल कट गई है बीच में। आवाज़ आ रही है सर, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है। जी ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो आप जो टॉप 10 थ्रेड्स हैं उनको लेके जो है ना वो डिटेक्ट करें। टॉप 10 थ्रेड्स को लेके, ओके। जैसे आप ये इन 3 थ्रेड्स को लेने की कोई खास रीजन है? नहीं सर, कोई खास रीजन नहीं है, ये रैंडम ऐसे ही मैंने लिए। अगर हम इसमें दूसरे भी ले सकते हैं, हमें सिर्फ चेक करना होगा। अगर आप अटैक्स को लेकर टॉप 10 अटैक्स को लेके चलेंगे ना तो वो ज़्यादा फीजिबल रहेगा। उसको नोट श्योर सर, नो प्रॉब्लम, ओके। तो नोट कर लें तो हम टॉप 10 अटैक्स कंसिडर करें। ओके। और दूसरी बात है कि जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो रियल टाइम जो मॉनिटर करके उससे उसके डेटा से जो है ना तो करना चाहिए। जी सर, इसमें ये करेंगे ये कि एप्लीकेशन जब डिज़ाइन कर रहा होगा तो कोशिश यही होगी कि इसको डेटा को रियल टाइम डेटा के ऊपर करे, या API के थ्रू या किसी कस्टम डेटा के थ्रू मैं उसे रियल टाइम के ऊपर इसको टेस्ट करता हूँ, मॉडल को चेक करूँ एप्लीकेशन के थ्रू और वो अलर्ट्स शो करे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी फुरकान, यू कैन कैरी ऑन विद योर क्वेश्चन। सर बिलाल हूँ मैं।
जी। सॉरी अच्छा मेरा थैंक यू। जी जी मेरा एक सवाल था इसमें, अगर आप डेटा सेट अपना स्क्रीन पे एक दफ़ा शेयर कर दें, एक्सेल फाइल जो थी, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं ना, हम्म। यानी कॉलम्स की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। तो आपने जैसे बताया कि आपने 5 इसमें से कंसिडर किए हैं फीचर्स ना, तो इसकी कोई आपने पीछे वर्किंग की थी, फीचर इंपॉर्टेंस की, कि आपने वही 5 क्यों सेलेक्ट किए, या वो डोमेन नॉलेज की वजह से आपने लिए थे कि आपको आइडिया था, या इसकी कोई आपने फीचर इंपॉर्टेंस निकाली है? हाँ, थोड़ी बहुत इसकी वर्किंग भी थी और कुछ मैंने इसकी सिमिलैरिटीज़ की बेस सिमिलैरिटी भी निकाली है। ये मैं इसको एक फाइल बनाई थी, ये वेरिएबल्स की सिमिलैरिटीज़ के ऊपर काम किया था। जो ये पूरे डेटा कॉलम है, डेटा सेट है जो CIDS के, उसके जितने भी कॉलम्स थे इनकी सिमिलैरिटी निकाली है अगेंस्ट दिस डेटा सेट। और इसके बाद उसमें से जो मुझे बेटर, जिसकी एक्यूरेसी या सिमिलैरिटी स्कोर थोड़ा ज़्यादा था, वो पिक करे थे, और नहीं उसमें से मेरा कुछ सेंस भी मैं थी मेरी। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये आपकी एक तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ना, क्लासिफिकेशन नहीं है, फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या है? फोरकास्टिंग बेस्ड प्रॉब्लम है, तो फोरकास्टिंग। रिग्रेशन, चले रिग्रेशन बेस है ना फॉर एग्जांपल, तो मेरा मकसद ये है कि इसमें आपका कोई ना कोई टारगेट कॉलम होगा, कि जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं टारगेट कॉलम होगा उस डेटा सेट में। तो आया उस कॉलम के ऊपर कि वो जो आपने 5 पिक किए हैं कॉलम्स, उनकी रेलिवेंस में उनकी बात कर रहा हूँ, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा कॉलम डिलीट कर दिया हो, या आपने कोई ऐसा कॉलम या फीचर आपने सेलेक्ट ना किया हो जो कि आपके टारगेट वेरिएबल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मकसद ये था कहने का। नहीं, आई थिंक आप रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं फोरकास्टिंग की बात कर रहा हूँ। हम फोरकास्ट यहाँ वही पर रिग्रेशन हुई ना, फोरकास्ट रिग्रेशन लेकिन प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल को वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को चेक कर रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे मॉडल के ऊपर, यानी नेटवर्क के कर रहा है या CPU कर रहा है, जो भी हमारे वेरिएबल्स है वो उस हमारे सिस्टम के ऊपर या नेट उसके ऊपर कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से ये अटैक आया या अटैक हुआ। तो हम जब डिटेक्शन करते हैं ना, तो डिटेक्शन में बेसिकली वो ये बता रहा है कि कौन सा वेरिएबल मेरा ज़्यादा इसके ऊपर अफेक्ट हुआ है सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से ये हमारी अटैक कॉज हुआ। जो मैंने अभी एग्जांपल में भी दिखाया था कि फ्लो ड्यूरेशन ने उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उस वक्त जब अटैक हुआ, बाकी वेरिएबल से इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो आप सिक्योरिटी टीम या किसी को भी जब डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर ये चीज़ सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि अटैक हुआ है, वो सब पहला सवाल उनका ये होगा कि अटैक हुआ तो किस पर हुआ। तो वो चीज़ वेरिएबल यानी आप फीचर की बात कर रहे हैं ना, वेरिएबल से बेसिकली, मतलब आपका बिल्कुल वो फीचर। फीचर बता रहा है कि भाई कौन से फीचर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया आपकी ज़बान में। मैं उसे ठीक है वेरिएबल कह रहा हूँ। ठीक है ओके। देखिए एक पैकेट के अंदर जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो फॉर अ नेटवर्क एनालिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। बिल्कुल होती होगी। मतलब वही ना, मतलब अगर आप इसके ऊपर डिटेक्शन करवाते हैं अपने सिलेक्टिव फीचर से और बाकी इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव डिटेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर देखा जाए तो। बिल्कुल कर सकते हैं आप जो बात कह रहे हैं वो चीज़ भी है, मैं सारे फीचर्स को भी ले सकता हूँ। अभी तो मेरे पास मल्टीपल फीचर्स है, मैं नहीं बहुत सारे नहीं फीचर्स नहीं भी ले नहीं, सकता सारे नहीं ले सकते ना, यही तो इसमें मेरा मकसद यही है कहने का, आप सारे नहीं ले सकते इसमें आपका। आप इसमें अगर कैलकुलेट कर लें कि कौन से फीचर की रेलेवेंस ज़्यादा है, हूँ। ठीक फुरकान है। भी मेरे ख्याल से यही बात कहना चाह रहे हैं। इनका मेरे ख्याल से डोमेन है ना, तो ये ज़्यादा आपको बेहतर समझा पाएंगे। मैं जस्ट लाइक सामा ट्रेनिंग की सामा बात यार। कर रहा था। हाँ सॉरी उसामा, सॉरी। जी जी, उसामा, पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। ही इज एन सिक्योरिटी एक्सपर्ट और सॉक एनालिस्ट भी है। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी मेरी डोमेन यही है, मैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में लीड करता हूँ सॉक को, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स को। तो बस इसलिए जो आपसे सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कर रहा हूँ तो माइंड मत कीजिएगा प्लीज। नहीं, माइंड नहीं कर रहा, मेरा डोमेन ये सिक्योरिटी नहीं है। मैं बेसिकली डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन के ऊपर काम करता हूँ। मेरा डोमेन मार्केटिंग और उससे रिलेटेड है। मेरा साइबर सिक्योरिटी से ज़्यादा वो नहीं है, यानी चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता हूँ। जी सो ये मेरे लिए तो भी एक्सपोजर है और चीज़ें हैं। अगर आपने अपनी रिसर्च को और ज़्यादा प्रिसाइज और टू द पॉइंट रखना है ना, तो फिर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि बोले आप जो बोले। है ना
इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें और ज़्यादा ना, तो ये कि आपकी रिसर्च अच्छी और ज़्यादा जो है अच्छी हो जाएगी, श्योर। बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं आप। और ये कि एक जो है ना आप अपनी कोई वीएम बना लें, उसके ऊपर कोई आइडियाज ओपन सोर्स वगैरह डिप्लॉय करके, और एक कोई वीएम बनाए काली की, उससे हिट्स मार के चेक कर लें कि आपका जो है ये रियल टाइम पे पकड़ता है नहीं पकड़ता, डिटेक्शन करता है। ओके, ठीक है, डन। मैं इसको टेस्ट कर लूँगा, इसको स्कोप में रखूँगा बिल्कुल मैं। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब एक्यूरेसी आती है में, तो जो सिग्नल्स हैं ना, उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। अलर्ट रीज़न ना आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है, कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं और उसका रीज़न क्या आ रहा है इसी में, तो आपके लिए एक्यूरेसी लाना ना ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको रीज़न पता हो जाएंगे ना कि किस तरह के रीज़न की वजह से आ रहा है और थ्रेड एक्टिवेशन कौन से आ रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं वो, तो इजी हो जाएगा कि आपके ना जो आपके जितने भी अलर्ट्स आ रहे हैं उसके रीज़न आपको ऑलरेडी पता होंगे। नेक्स्ट टाइम की जो ट्रेनिंग होगी वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं इसको भी नोट कर रहा हूँ अपने पास, और मैं इसे भी इंकॉर्पोरेट करके चेक कर लूँगा इसमें। जी, असल में एनी ये ऐसा सीक्वेंस सजेशन? 1 की रिसर्च है ना, तो इसके अंदर अभी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। तो ये जो है इंशाल्लाह इसको सीक्वेंस 2 के अंदर कैरी ऑन करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स अभी बाकी हैं जो भी इनकॉर्पोरेट करने बाकी हैं, तो मे बी शायद उससे आप लोग के सवाल क्लियर हो जाए जी, और जब मैं वो बिल्कुल करूँगी। आपको मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसामा के साथ स्पेशली जो है वो कनेक्ट रहें, उसामा और फुरकान के साथ। ये सीनियर्स हैं आपके और जी। इन्होंने इन इस डोमेन के अंदर काम भी किया है, तो दे वुड ओके। बी गाइडिंग यू बेटर इंशाल्लाह। श्योर, श्योर, श्योर सर, बिल्कुल। आप लोग कॉन्टैक्ट और कीजिए जिस अपने डेटा उनके सेट साथ। की सॉरी 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 जी, जी, आप कैरी ऑन करें। नहीं, जिस डेटा सेट की ये लोग बात कर रहे हो सामान, आई थिंक शयान या समथिंग और, कि उसमें हाँ इनमें इन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ है। स्पेसिफिक ही करते हैं लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हैं, आप फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव और इसमें कौन कौन से लेबल्स या वेरिएबल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। आपके आप सब ले लेंगे ना, तो आपके पास आंसर्स, आपका जो रिजल्ट है ना वो एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि वो डेटा सेट बहुत बड़ा है। अगर बिल्कुल। डेटा सेट को डिवीजन से आपको डिवाइड करके आपको करना पड़ेगा। तो इस ठीक। वजह से उसामा मैं आपका क्लियर इस वजह से कर रहा हूँ कि ये डाटा सेट, ये वाला डाटा सेट ना काफ़ी काफ़ी बड़ा है। तो उसमें आपको कोई ना कोई चीज़, बस इसमें ये है कि इनको कुमैल को फॉर फ्यूचर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस किस पैटर्न में जा रहे हैं, और उसको थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये इनका डोमेन नहीं है, उसामा का डोमेन है, तो ज़्यादा वो होगा, बेहतर होगा उनके लिए वो समझना होगा। बिल्कुल। एनी मोर सजेशंस और कोई आप लोग पूछ सकते हैं। हम्म, मेरी आवाज़ जी, जी, आ रही है। जी, मैं अभी हाँ, आईडीएस कैसे काम करता है उसका भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम सीक्वेंसिंग डिस्कस करेंगे। तो जो आप डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, आप खुद भी एक डेटा सेट यूज़ कीजिए ओके, और उस पे भी फिर टेस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि वो चेक करें कि कितना परफॉर्म कर रहा जी, जी, बिल्कुल। है। ओके, ओके सर, नोटेड। इसके अलावा आप ये और नोट कर लें कि आप ये किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, एंटरप्राइज लेवल, लार्ज बिजनेसेस को, अ, उसके हिसाब से भी जो है अपने डेटा सेट को आप चेक करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स आपने उसमें फिल्टर आउट करने हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपने बताई थी, मेरा क्वेश्चन है, तो एग्रीकल्चर का जो आपने बताया था कि किसी ने इसको एग्रीकल्चर के ऊपर भी टेस्ट किया है। हाँ, एग्रीकल्चर डेटा देखो।
वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि एग्रीकल्चर से क्या मतलब है, कि मतलब तो उनका कोई नेटवर्क था जिसको कि वो थ्रेट डिटेक्शन कर रहे थे उस पेपर में। उस पेपर में सर उन्होंने इस तरीके से ही लिखा हुआ था कि आपके एग्रीकल्चर का उन्होंने डेटा लिया हुआ था कोई, और डेटा के ऊपर वो सिर्फ चेक करके बता रहे थे, कोई एनोमली वगैरह डिटेक्ट नहीं कर रहे थे। एग्रीकल्चर के डेटा से क्या मतलब है, वो आप दिखा सकते हैं डेटा, वो किस तरह का डेटा अ, है? नहीं सर, वो डेटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो, लेकिन उन्होंने काम जो है वो एनजीटी पे किया। जी अच्छा, ठीक, ठीक है, दैट्स फाइन। सर, अगर कोई और क्वेश्चंस वगैरह ना हो तो आई थिंक वी शुड हाँ एंड ठीक है, दिस आप सेशन। अगर और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मतलब वी कैन एंड दिस। ठीक है, आई थिंक टाइम है भी ओवर हो गया। थैंक यू सो मच everybody for joining this session, and inshallah soon we will be having more sessions on cybersecurity, श्योर। and these workshops will soon inshallah continue with more advanced features, and inshallah in future too, all of these applications will be covered inshallah. Thank you so much for joining this session. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।